Hello everyone. Welcome to the Career Talkie with Abhilash. Today is a special day and in India we celebrate it as National Teachers Day, 5th of September. And definitely ये बात तो मैं आप सब मुझसे अग्री करेंगे कि जिंदगी की जो शुरुआत होती है जब आप पहले बचपन में आप पहला चीज जो आप बनना चाहते हो या तो आप अपने घर के अराउंड अपने पापा मम्मी को देखते हो या तो पहला चीज आप अपने टीचर को देखते हो। पहला सवाल कोई भी बाहर का गेस्ट आता है आपके पास तो पूछते बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे एंड 90 टू 95% पीपल यही बोलते हैं कि जो भी उनकी मैडम है जो भी उनके टीचर है उनका नाम लेके बोलते हैं कि मैं ये बनना चाहूंगा ये चाहूंगी। सो वो रेलेवेंस है टीचर का। एक होता है कि आपके घर में आपको कैसा माहौल मिलता है, पर हमारे स्कूलिंग सिस्टम में हमारा जो 10 घंटा या 11 घंटा 8 घंटा जो है लाइफ का 24 आवर्स का इनिशियल से 16-17 साल तक स्कूल एजुकेशन में जाता है। तो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ घर के प्रति नहीं रहता, बट हमारे स्कूल के साथ भी जुड़ जाता है। और ये कहा भी जाता है कि मेनी ऑफ अस अग्री टू दिस व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। वी ऑल से दैट इट हमारा बचपन, माय स्कूलिंग डेज, माय younger times, and one of the most critical stakeholder of that younger times is our teacher. Today I am very fortunate to have a guest. She is a chemistry faculty. She's a teacher, and she's also, I would say, we give a lot of responsibilities to teacher. Someone who could is the first listener of the child, first listener of any dilemma you face in school. और ये होता है ना कि स्कूल में कई बार आप गलती से मम्मी बुला देते हो तो योर टीचर लाइक दैट वी आई हैव माय गेस्ट टुडे। प्लीज वेलकम किरण द्विवेदी मैम। Hello everyone. हेलो मैम। Namaskar. Thank you, Abhilash. वेलकम टू द शो मैम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। टीचर्स डे था और मुझे पता है आपके स्कूल में आपके लाखों स्टूडेंट्स टीचर्स डे के लिए आपको विश भी करते होंगे, चाहते भी होंगे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बट आपने कुछ टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच मैम। Even I'm very happy to join you, Abhilash. And uh, Abhilash is my student, and he was my student in 10th standard. So I don't know how I have influenced his life, and he had called me today as his guest. So I'm really fortunate to be his guest. His sister was my student in 12th standard when I came from Aurangabad, KV Aurangabad, and Abhilash was in 10th standard, I feel. We would like to know your career journey as a teacher from your schooling life to professional life of becoming a teacher, whichever organization, that doesn't matter. And once you enter to that profession, what was your professional development? Ma'am, what we have understood, every life has a up and down, dilemmas, decision making, challenges. वी वांट टू अंडरस्टैंड। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी हमें लाइट अपने जीवन के इस ऑल दैट फेजेस में थोड़ी सी बताएं सो दैट हमारे जो लिसनर जो ये सोचते हैं कि व्हाट इज द करियर ग्रोथ ऑफ ए फैकल्टी एज अ टीचर इन दिस कंट्री, उसके बारे में उनको समझ में आए। एंड इफ दे हैव एनी क्यूरियोसिटी और एनी क्वेरी, आई कैन कम बैक टू यू अगेन एंड आस्क कि मैडम ऐसी सोच हमारे लिसनर रखते हैं। Abhilash, my father was in army, so I was very fortunate to get admission in Kendri Vidyalaya. My schooling right from second standard to 12th standard, I have studied in KV. So I am also a KV student, and it was very easy for me to adapt to the KV. So my whole life has gone into KV. So since being my father being in army, I have studied in KV Sambra, Belgaum, then KV Ambala Kent, KV Baragad, KV Makarpura, Baroda, and from 5th to 12th, I have spent my time in KV number 2 Agra Kent. So this I up to 4th standard I don't remember what all teachers. I don't even remember a single teacher up to 4th standard.
But when I came to Agra, from fifth standard to 12th standard, because my father was in job up to fourth standard, and after his superannuation, uh, he got superannuation when I was in fifth standard. So lot of challenges were there in front of. He was retired. He had so many responsibilities. Uh, he had we basically come from a village um, near Hathras. Achha. So Agra was very Near to right, nearby. right. I get. Hathras, yeah. Agra is very nearby to Hathras. So myself and my sister, my elder sister, she was in KV. We were studying in KV. तो पापा जी ने बोला कि भाई अब क्या क्या करना है, पूरा लाइफ तो बाहर स्पेंड कर दिया. नाउ आफ्टर रिटायरमेंट एटलीस्ट आई शुड सेटल uh, with my uncle who had no children. So it was really very tough time for him to decide. So uh, we were like Hathras and Agra, it is just a 1 hour journey. So we both were admitted to KV Agra. My mother used to stay with my uncle who had no children in my village, and my father used to stay with us. So in fifth standard, like तो आपकी स्कूलिंग पूरे आगरा में रह के करी, schooling, नहीं ट्रैवलिंग तो वीकेंड्स वगैरह ट्रैवलिंग में? तो नहीं करते थे. एक किराए का मकान लिया, एक कमरे का. उसमें वी बोथ सिस्टर्स एंड माय फादर यूज्ड टू स्टे. देन ही हैड टू फाइंड अ जॉब आल्सो. सो ही डिड अ स्मॉल जॉब ऑफ some 300 rupees per month he was getting at that time. But the fees of KV was very nominal at that time, and the village was nearby. So every Saturday, Sunday, we used to go to our village. And this is what I have learnt a lot through this, because every Saturday, Sunday, we had spent a good time with family members. So because uncles were there, all our family members. So every Saturday, Sunday, we used to go by train and go walking and enjoying all the. हाँ, so बड़ा मज़ा आता था और उसमें बहुत सारी learning. My father was in education department in army, so he was basically an instructor, educational instructor in educational corps. So he had that kind of टीचर इन हिम. सो जाते जाते जब पैदल पैदल ले जाते थे, तो सारी चीजें मतलब बताते जाते थे, ये रबी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, और ये अब इसमें अब उगाई जाती है, और इसमें इस तरह के फूल आते हैं. सब तक जब पैदल चलते जाते थे तो सारा कुछ दिखाते. मीन्स इट वाज लाइक ही वाज अ मैन ऑफ ह्यूमैनिटीज. he he was MA LLB. He did MA LLB at that time. So but he did not pursue in that field law. आर्मी में चले गए कुछ रीजन से. बट समवेयर अ टीचर वाज देयर. हाँ, ही डिड बीएड आल्सो. सो समवेयर अ टीचर वाज देयर इन हिम. सो वो उससे थोड़ा सा मतलब इंस्पिरेशन मिलता था कि द काइंड ऑफ तो लेसन्स ही यूज्ड टू गिव, वो प्रैक्टिकल आपको लेसन्स. प्रोफेशनली इंस्पायर भी कर गया, तो मैं प्रोफेशनली टीचिंग हाँ, एंड हैविंग. तो हाँ, तो वो मतलब फिर कैसे हो गया. चीज़ों को जब हम बुक में पढ़ते थे, आई यूज्ड टू इमेजिन दोज थिंग्स कि हम वहाँ गए थे, हमने वैसा सब देखा था. सो दैट लर्निंग बाय डूइंग वाला जो चीज़ है, इंटरेस्ट लाइक आई यूज्ड टू गेट समवेयर वी से नो कि मार्क्स डू नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो व्हेन आई वाज इन प्राइमरी, मुझे इतना याद है, आई यूज्ड टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, सॉरी, साइंस एंड इंग्लिश, नॉट मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश. सो दैट फंडामेंटल्स मे बी माई टीचर्स वुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मुझे अभी तक कोई टीचर याद नहीं है फोर्थ स्टैंडर्ड का, लेकिन हाँ, मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद से सारे टीचर्स मुझे बहुत याद हैं. एंड वट एवर आई एम टूडे इज ऑल ड्यू टू माई टीचर्स. So science, I was basically very interested, and it may be due to what the teachers have taught me in school, and I could correlate it when my father used to take me to different places. He always used to tell कुछ इंग्लिश में भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखे रहते थे, LTD. तो ही यूज टू आस्क. उस समय साइकिल में ही ले जाते थे हम दोनों बहनों को, एक को आगे पीछे ऐसे बिठा के, एंड ही यूज टू आस्क
कि ये एलटीडी मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब लर्निंग बहुत होता था उनसे। ब्रेन तो और अटेंटिव और शार्प भी होता यस, है, लाइक हाँ, पापा तो पूछ लेंगे। यस, सो वी ऑलवेज़ यूज्ड टू कीप कि भैया ये क्या लिखा है, तो उससे थोड़े लैंग्वेजेस अच्छे हुए। और और केवी में तो अच्छा ही होता है। आई गॉट वेरी गुड टीचर्स एट केवी आगरा। फ्रॉम योर डिसीजन टू बिकम अ साइंस स्टूडेंट, यू वर लाइक ऑलरेडी इंक्लाइंड कि मैं एक्चुअली हाँ, साइंस इन लूंगी। 8th स्टैंडर्ड, एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड वन ऑफ माय हिंदी टीचर गॉट मैरिड, recently married, and she used to come in very beautiful outfits those days, बड़ा मैचिंग मैचिंग के पहन के। एंड आई यूज टू फील लाइक बड़ा मतलब जॉब वॉब करने में बड़ा मजा आता है कि कितना मतलब हम मैचिंग मैचिंग पहन के और इतना अच्छे से हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं मतलब ऐसे मम्मी की तरह हाउसवाइफ नहीं रहूंगी, मैं कहीं ना कहीं जॉब जरूर करूंगी। बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट डिसाइड कि टीचर बनना है। but my father, since he has grown those seeds in me कि नहीं फीमेल्स के लिए लाइक टीचिंग जॉब इज द बेस्ट जॉब। और उस समय कहा भी जाता था लाइक अदर जॉब्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए ठीक नहीं है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं एज अ फीमेल, तो इट इज़ द बेस्ट जॉब। एंड दैट टाइम माई ब्रदर वॉज ऑल्सो पोस्टेड इन सिक्किम. So he was a doctor, my elder brother. So he was a doctor in some government medical college only. So सिक्किम में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत हार्ड लाइफ है। तो ही ऑल्सो हैज़ एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि तो बोले कि नहीं फीमेल्स के लिए मेडिकल बिल्कुल अच्छा फील्ड नहीं है। तो माय वो फादर एरा यूज भी उस टाइम पे मैम अलग था, अगर आप सही बात मतलब मैं हाँ, तो बोले नहीं हाँ, यू कैन नॉट गिव टाइम टू द फैमिली, 24 आवर सर्विस हो जाता है मेडिकल फील्ड में। सो थोड़ा सा डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एंड माय फादर सिंस ही वाज फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो उनको लगता था नहीं मेरे बच्चे साइंस पढ़े। तो उस समय थोड़ा सा ये था कि साइंस पढ़ा जाए। बट मैं तो ऐसे ही कि मार्क्स आते गए। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट कि फर्स्ट 3 में आ रही हूँ, टॉप 3 में आ रही हूँ। फर्स्ट 10 में हुआ करती थी मैं। और हार्ड वर्क, दैट इज द मेन थिंग विच आई यूज टू डू, कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये हमें सिखाया गया था। तो कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ ये नहीं था घर से, बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड था। मैं और मेरी सिस्टर दोनों मतलब गाइडेंस के लिए कोई नहीं, पापा भी जॉब में चले जाते। तो वट एवर द टीचर्स यूज टू टेल अस, वो हम बहुत ध्यान से सुनते थे और मेहनत करते थे। एंड दैट प्रैक्टिकल वाला अप्रोच जो है लर्निंग बाय डूइंग, वो बहुत वर्क काम बहुत वेल। आता है। हाँ, अगर हम चीज़ों को सिर्फ इमेजिन भी कर रहे हैं ना, लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो हमने कुछ देखा हुआ है तो हम इमेजिन करते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें हमें मिल जाती हैं, पर उस समय में नहीं था। आई ट्रू मैम। ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग, 6th क्लास में हमें रामायण और 12th में सॉरी 7th में महाभारत हुआ करती थी हिंदी में, करेक्ट, एज हिंदी अ में किताब होती सप्लीमेंट्री, थी अलग से, यस मैम। सप्लीमेंट्री रीडिंग। हाँ, हाँ, तो आगरा में रामलीला मैदान है एक, बड़ा वहाँ ही पे पूरे फेमस वो है। 10 दिन दशहरा के समय रामलीला चलती है। तो मेरे फादर मुझे और मेरी सिस्टर को व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो पूरा हमें 10 दिन वो लेके जाते थे और वो दिख मतलब देख के डिस्कस भी करते थे कि ये हुआ वो हुआ। एंड आई ऑल्सो लर्न रामचरित मानस, टू रीड रामचरित मानस इन 6th स्टैंडर्ड। तो कुछ ये मेरा स्कूलिंग का जर्नी रहा है। और 12th तक केवी आगरा में मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ उन टीचर्स के ही कारण हूँ। और केवी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। और अब मैम आपका कितना, ये 30 ईयर्स तो हो गया होगा मैम आपको 30 टीचिंग करते? इयर्स हो गया मुझे, यस तो 30 कितने इयर्स। बच्चे मैम पास हो गए आपके नजरों के नीचे से? कम से कम 40-50 हजार बच्चे 30 तो। इयर्स ऑफ इंडस्ट्री। बट हाउ डिड यू, फिर आपने ग्रेजुएशन के लिए आगरा ही चूज किया? हाउ डिड थिंग्स हैपन इन हाँ, दैट एरिया? एक्चुअली क्या था, केवी में
माय आई वांटेड मीन्स एक वहाँ पे दो ही कॉलेज हैं हम जहाँ रहते थे, सो सेंट जॉन्स कॉलेज एंड आगरा कॉलेज। तो जो सेंट जॉन्स कॉलेज है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। तो आगरा कॉलेज में बहुत मस्ती वाले बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ मस्ती ज़्यादा होती है, ऐसा सुनने में आता है, आता था उस समय। तो मीन्स एक डिसिप्लिन स्टूडेंट थी मैं, मतलब बहुत मस्ती वाली नहीं थी। तो माय फादर वांटेड कि भाई जहाँ भी अच्छे मार्क्स आ गए हैं इसके 12th में, तो जाओ अपने आप फॉर्म भर दो। तो जब परसेंटेज देखा तो परसेंटेज बेसिस पे उस समय मार्क्स हो एडमिशन्स हो जाया करते थे। हाँ, तो हो गया, सेंट जॉन्स में फॉर्म भर दिया, वहीं हो गया एडमिशन। फिर लाइक अ मीन्स आई स्टडीड लाइक अ वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट, इवन इन कॉलेज ऑल्सो थ्रू आउट। हाँ, तो एंड वेरी हार्ड वर्किंग, जो टीचर ने बोल दिया वो पूरा करना है। लाइक एंड सेम थिंग माई चिल्ड्रन ऑल्सो, and I same thing I want from my students also. The way, yeah. And I get irritated also sometimes when they do not listen, when they do not follow the instructions. मैम ग्रेजुएशन में आपने व्हाट वाज द स्ट्रीम ऑफ बीएससी So केमिस्ट्री? आई मीन yes, हाउ डिड यू चूज दैट एंड व्हाट वाज द ऐसे क्या सोच के आपने सोचा कि ये करने से मैं ये नेक्स्ट में actually ये my biology was my favorite subject up to 12th. I used to get very good marks in biology. प्री बोर्ड तक मैंने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स 60 प्लस मिलता था 70 में से। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द फाइनल एग्जाम, पेपर में कुछ ऐसे आ गया, तो आई कुड नॉट स्कोर मच इन बायोलॉजी। सो सडनली आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो आजकल जैसे बोलते हैं ना कि मार्क्स डू नॉट काउंट, knowledge counts. So what I feel is marks also play a very important role इन एडमिशंस। अगर मेरे ट्रू मार्क्स अच्छे नहीं होते तो एडमिशंस मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं मिलता ही मिलेगा। नहीं। दूसरा एक जो हम कॉन्फिडेंस हमारा नीचे चला जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत नीचे आ जाता है अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो वो मार्क्स कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम हम्म, फिर हाउ डिड यू स्विच टू दिस स्ट्रीम दैट कि हम्म। मेरा हाँ, तो मेरे मतलब केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बहुत फेवरेट हो गया। एंड व्हेन वी स्टार्टेड 11th 12th में, जैसे ही आते हैं 10th से, तो बहुत वास्ट हो जाते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट्स। तो बहुत मतलब अ, बहुत बच्चे फेल होते थे क्लास में, और मैं कभी केमिस्ट्री में फेल नहीं हुई। मतलब 35 मार्क्स का उस समय टेस्ट हुआ करता था, 18 19 मिल जाते थे। वो हाईएस्ट भी नहीं होते थे, हाईएस्ट 25 26 कुछ हुआ करते थे, जो भी है, एक दो बच्चे के होते थे, और बहुत आधी से ज्यादा क्लास फेल हो जाया करती थी। तो मुझे लगता था अरे केमिस्ट्री में क्यों फेल हो रहे हैं ये, मैं तो अच्छा सब्जेक्ट है। फिर कुछ टीचर इतने अच्छे मिल गए जो प्रैक्टिकली, हमारे टाइम में प्रैक्टिकल से कोरिलेट करके बहुत अच्छे से मतलब वो पढ़ाए। तो धीरे धीरे मतलब वो उसमें भी इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप होने लगा। और फाइनल में जब वो मार्क्स ज़्यादा आ गए केमिस्ट्री में, तो फिर ऐसा लगा कि अरे बड़ा, हाँ, ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है बड़ा। बायोलॉजी में फिर कॉलेज में भी अच्छे प्रोफेसर्स मिल गए केमिस्ट्री में। फिर जब धीरे-धीरे पता चला, बात करते रहे एक-दूसरे से, तो पता चला कि केमिस्ट्री के स्कोप ज़्यादा है कंपेयर टू बायोलॉजी, है ना? तो बायोलॉजी में बहुत रोट लर्निंग है, चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं टर्म्स, स्कोप भी कम है। इफ़ यू वांट टू, हाँ, लाइक पेरेंट्स बोल रहे हैं कि टीचर बनना है, तो भाई टीचर बनना है तो हाँ, केमिस्ट्री, हाँ, तो आई टूक सीबीज़ेड, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी मैंने ग्रेजुएशन में लिया। और फिर एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया। तो उसके पीछे पीछे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल वाली स्टोरी है। मैम तो ये जो आपने मैं एक ही साथ कर लिया? आपने बीएससी करने के बाद इमीडिएटली मास्टर्स? इमीडिएटली, यस, अच्छा इमीडिएटली अच्छा वहीं अच्छा। से एमएससी कर लिया सेंट जॉन से ही। बताइए मैम बीएड हाउ मैंने, हाँ, मास्टर? बाद में किया। तो वो ये स्टोरी यही है। एमएससी प्रीवियस में मुझे एडमिशन मिल गया। तो एमएससी प्रीवियस में हमने केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तीनों ये एडमिशन हो गया एमएससी प्रीवियस में। अब फाइनल में ऑर्गेनिक मुझे लेना था, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा सबसे अच्छा था। और फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सो सो था, और फिजिकल मतलब क्योंकि मैथ्स नहीं था मेरे पास 12th क्लास में,
तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, तो मैथ्स बेस नहीं था, तो उसमें काफ़ी कम मार्क्स थे। तो यहाँ जब सेंट जॉन्स कॉलेज में जो मेरिट बनती है, तो टॉप 10 विल गेट ऑर्गेनिक, नेक्स्ट वन विल गेट इनऑर्गेनिक, एंड द लास्ट वंस जिनको कम है वो फिजिकल मिल जाएगा। तो फिजिकल ज़्यादातर लेते नहीं थे लोग। उस समय हमें भी पता नहीं था क्या स्कोप है फिजिकल का, क्या है। सिंस आई वाज नॉन मैथ स्टूडेंट्स, तो फिजिकल तो लेना ही नहीं है, ऐसा था। और ऑर्गेनिक में जब फर्स्ट प्रीवियस में मैं मार्क्स देख रही हूँ मेरे, तो जो टॉपर था हमारा, अ, उससे भी मेरे ज़्यादा मार्क्स ऑर्गेनिक में थे, मतलब टॉपर से भी ज़्यादा मार्क्स, टॉपर को तीनों मिलाकर उसके मार्क्स थे, और मेरे ऑर्गेनिक में ही उससे ज़्यादा मार्क्स थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ऑर्गेनिक ही करना चाहिए, व्हाई शुड आई टेक फिजिकल, व्हाई शुड आई टेक इनऑर्गेनिक। अब 10 बच्चों का जब ये लिस्ट लगा, तो उसमें मेरा नाम तो वेटिंग में है, और वो भी दूसरे नंबर पर वेटिंग में है। अब जब लिस्ट लिखने गई तो 10 बच्चे हैं, 12वां नंबर मेरा है, तो एडमिशन का कोई चांस नहीं है। आई वाज लिटरली अबाउट टू क्राई। तो मैं एचओडी के पास गई, तो मैंने कहा कि भई सर, मेरा तो नाम नहीं है, कुछ है स्कोप आगे? ये लिस्ट बढ़ेगी क्या? वेटिंग लिस्ट में है, 12 नंबर पे है। तो बोले नहीं, अब तो कोई स्कोप नहीं है, तो तुम फिजिकल ले लो, अरे फिजिकल में है, सीट है। हाँ, तो सर, फिजिकल तो नहीं लूंगी, मुझे फेल थोड़ी होना है, हाँ, एमएससी करनी है हाँ, मुझे। हाँ, अब 33 मार्क्स शायद कुछ थे मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में, जस्ट पास हो गई होंगी, मतलब जो भी नॉमिनल उसमें परसेंटेज पासिंग के लिए चाहिए उतना ही था। तो मैंने कहा सर, अब फेल तो नहीं होना है फाइनल में फिजिकल में लेके। तो बट अभी तो हंसी आती है, उस समय तो आंखों में आंसू थे। तो फिर एक आरबीएस कॉलेज है वहाँ आगरा में ही, जहाँ पे मतलब काफ़ी एडमिशन्स हो जाते हैं, लो मेरिट जाता था उस समय। तो बोले कि पर ये भी है कि प्रीवियस यहाँ से किया है, तो फाइनल आपको वहीं कॉलेज से करना है, आपको कोई दूसरा कॉलेज क्यों एडमिशन देगा फाइनल में। तो मैंने कहा कि सर, मैं आरबीएस में ट्राई करती हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक में तो मार्क्स अच्छा है, तो शायद वो लोग दे देंगे, ऑर्गेनिक दे देंगे मुझे। पर करना तो मैं, चाहे मुझे ड्रॉप लेना पड़े, चाहे मुझे एमएससी छोड़ना पड़े, बट मैं करूँगी तो ऑर्गेनिक में ही करूँगी। मैं एचओडी को इतना बोल के आ गई। हाँ। और मतलब एचओडी के सामने तो नहीं रोई, पर बाहर आते ही मुझे, मेरे आँखों में आँसू आ गए और मैं रोने लगी। फिर हमारे लैब अटेंडेंट थे बाहर, तो मैं जैसे ही साइकिल से जाया करती थी स्कूल, जैसे ही साइकिल स्टैंड पे आई, तो मुझे वो एचओडी जो लैब अटेंडेंट थे वो आए बुलाने। बोले आपको एचओडी ने बुलाया है द सेम डे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों बुलाया है? तो बोले अभी रो मत, खुश हो जाओ। हाँ, मैंने कहा क्यों खुश हो जाऊँ? तो बोले अरे, तुम्हारा 2 लोगों ने एडमिशन कैंसल कर लिया है अपने। हाँ, और तुम्हारा एडमिशन दूसरे नंबर पे हो गया है ऑर्गेनिक में। अरे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस इज़ हाउ आई डिड माय वो एमएससी। ना किसी आपने ये बोला तो मुझे वो यस, मूवी का, किसी चीज को आप शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको करने में, यस। लाइक इट हैपेंड विथ यू। तो आई फील लाइक मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि मुझे उस समय, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ भी नहीं दी भगवान ने। और नहीं नहीं मुझे मैम, आप तुरंत तो डिसिप्लिन भी रहे हो मैम। एंड देन व्हाट हैपेंड, हाउ डिड बीएड हैपेंड, हाउ डिड टीचिंग देन, हाँ, प्रोफेशन हैपन है? यस, देन एमएससी के बाद माय फादर वाज अ ट्रू गाइड फॉर मी। तो ही यूज्ड टू गाइड एंड वी यूज्ड टू लिसन आल्सो, है ना, एट दैट टाइम। अभी आजकल कैसे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, हाँ, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें भी ज़्यादा प्रोफेशंस का पता नहीं था। देन माय सिस्टर, शी वाज एल्डर, उसको वहाँ पे सीपीएमटी वगैरह का कोचिंग वगैरह भी दिया था। तो माय फादर सेड आफ्टर 12th कि तुमको अगर मेडिकल जाना है, यू आल्सो टेक कोचिंग। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कोचिंग वोचिंग मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सब बोल रहे हो, भैया भी बोल रहे हैं, आप भी बोलते हैं टीचिंग जॉब अच्छा है फीमेल्स के लिए, तो आई विल परस्यू टीचिंग एज अ करियर। तो एक मन बना लिया था, मतलब उसके बाद से। तो फिर एमएससी के बाद बीएड एंट्रेंस दिया, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आगरा में। तो वहाँ एडमिशन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीएड कर लिया। वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, लाइक स्कूल, मतलब मैं पूरा एजुकेशन, लाइक मुझे फ़र्क समझ में नहीं आया कि मैं कब कॉलेज में पढ़ी और कब मैं स्कूल से अलग हो गई। सो माय दैट सेंट जॉन्स कॉलेज इज़ आल्सो लाइक अ स्कूल ओनली। ना ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट शायद ऐसा होगा, बट साइंस फैकल्टी वाज़ लाइक
all regular classes, regular practicals, मतलब up to from morning 8:30 to evening 6 o'clock. We had all practicals, all classes. So I enjoyed doing all my graduation, post graduation, yeah. तो और लाइफ में मैंने यही देखा है, इफ यू एंजॉय डूइंग एनीथिंग, तो आपको बिल्कुल, आप एक एंथुसियाज्म जो है वो बना रहता है, टाइम भी पता नहीं चलता और इमर्स टाइम भी भी हो पता जाते नहीं हैं। चलता, या। मैम फिर बीएड 3 इयर्स का होगा ना मैम, जब बीएड, हाँ, बीएड नहीं, 1 ईयर बीएड था। 1 ईयर, उसमें 1 ईयर फिर बीएड था। प्रैक्टिकल के लिए आप हाँ, स्कूल टीचिंग कुछ हाँ, होता है ना हाँ, बीएड का भी? वो टीचिंग एक्चुअली, मैं आई आई रियली थैंक गॉड फॉर सो मेनी ग्रेट थिंग्स गॉड हैड डन विद मी। मैंने 12th के बाद जो बीएससी किया, वो 2 ईयर बीएससी किया, और जैसे ही मैंने 2 ईयर बीएस मतलब 2 ईयर बीएससी करके फाइनल करके किया, उसके नेक्स्ट ईयर ही 3 साल का हो गया बीएससी। अच्छा। तो मुझे 1 साल का वो उधर फायदा हो गया। और बीएड भी, मतलब एमएससी के तुरंत बाद मुझे बीएड मिल गया, तो आई वाज वेरी यंग टू गेट इनटू केवी। एब्सोल्युटली। अच्छा, हार्डली अच्छा, मीन्स उसके बाद आपने केवी फटाक से ज्वाइन कर लिया, मतलब द केवी, आफ्टर यू? हाँ, बस 1 साल मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल एज ए पीआरटी हाँ। काम किया था इन नासिक। माय सिस्टर वाज इन नासिक एट दैट टाइम। तो शी वाज वर्किंग ऑन एडॉक बेसिस। तो वहाँ पे वैकेंसी हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा भी बीएड हो गया है, अभी तुरंत आ जाओ यहाँ पे। हाँ, 1 साल ऐसे था, पहले कॉन्ट्रैक्चुअल पे 1 ही साल लेते थे, नहीं तो वो क्लेम कर देते थे कि भाई परमानेंट कर दो, हाँ। तो उसने कहा मुझे तो देंगे नहीं, अब मेरा 1 साल हो गया है, तुम्हारा बीएड हो गया, तुम आ जाओ अब। सो आई अप्लाइड, आई joined as a primary teacher on 5th September only. तो आई वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम। हाँ, तो फिर ठीक है, ज्वाइन कर लिया। दैट्स हाउ एक नासिक साल, केम इनटू पिक्चर। आगरा हाँ, से नासिक आप। तो आगरा से नासिक, एक्चुअली माय ब्रदर इन लॉ, ही वाज इन दिस एयरफोर्स। एयरफोर्स। सो ही नहीं, वाज, बट आई एम सेइंग फॉर योर करियर, आपका जो या, चेंज ऑफ लोकेशन यस, हैपेंड यस। विद दैट। सो माय फर्स्ट जर्नी, उसके पहले भी मैंने 1 महीने आगरा में ही एक स्कूल में काम किया। एंड बोलते हैं ना, वो यंग टाइम होता है, तो एंड माय फादर वाज लाइक कि आप बिल्कुल बैठो मत, एंड टीचिंग वाज इनकलकेटेड इन मी राइट फ्रॉम मीन्स वेरी स्मॉल एज। तो व्हेन आई वाज इन बीएससी और 12th, आफ्टर 12th ओनली, बीएससी फर्स्ट ईयर ओनली, आई वाज टीचिंग टू स्मॉल चिल्ड्रन। फर्स्ट सेकंड के 2-3 बच्चे मेरे पास ट्यूशन आते थे, तो वो, हाँ, उनसे मैंने उनको पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो माय फादर यूज्ड टू से कि हाँ, आपका टाइम भी ये हो जाता है, एंड यू लर्न व्हेन यू आर टीचिंग, तो बेसिक चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होती हैं। सो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी बीएससी में। एंड देन फिर जल्दी एक एक स्कूल था घर के पीछे ही, सरस्वती शिशु मंदिर, तो वहाँ भी मैं गई, जब तक बीएड का रिजल्ट नहीं आया था। तो वहाँ भी छोटे बच्चों के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और 1 महीना मैंने कुछ एक सनातन धर्म या ऐसे कुछ करके, उम, आगरा में ही स्कूल है। इट वाज़ अ हिंदी मीडियम स्कूल। तो मैं केवी की पढ़ी हुई, साइंस वाला, तो थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म्स हिंदी में थे, तो मुझे साइंस दे दिया गया 10th क्लास का। और एक मैथ्स के टीचर थे जो काफ़ी सालों से वहाँ पढ़ा रहे थे, उनको वो मैथ्स पढ़ाते थे। तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए थे, तो थोड़ा-सा कंपैरिज़न हो जाता है, केवी से आई हुई और ये, हाँ। तो फिर 1 महीना हो गया मैंने पढ़ाया। आई अ वर्कड हार्ड फॉर द कि वो हिंदी में टेक्निकल टर्म्स, एटम को अणु और ये परमाणु और ये सब मैंने बहुत, बॉन्ड को बंद, बहुत बहुत सारा लर्निंग हुआ मेरा वो हिंदी में भी, और मतलब वो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। फिर जब वो पेमेंट उन्होंने दिया, तो मैथ्स टीचर को ज़्यादा दे रहे हैं और मुझे कम दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि भई ये क्या है? मैथ्स और साइंस तो इक्विवेलेंट है। बोले नहीं, ये तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बराबर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इनसे। मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो उतना, हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है। तो बोले नहीं, नहीं, केवी तो बाइलिंगुअल है, और मैडम आपको कुछ नहीं। तो फिर मैंने वहाँ 1 महीने काम किया था।
तो वहाँ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी कुछ लर्निंग हुई। फिर यहाँ बीएड करने के बाद बीएड का रिज़ल्ट आ गया तो नासिक आ गई और केवी में 1 साल कॉन्ट्रैक्चुअल काम किया। मैम अभी आपका प्रोफेशनल जर्नी एज अ टीचर, अब मैं उसमें ये चीज पहले दो तीन पॉइंट में जानना चाहूंगा। जैसे क्या होता है मैम, 10th क्लास होता है या 12th क्लास होता है, तो व्हाट हैपेंस इसके पूरे, व्हेन अ स्टूडेंट गिव्स द एंटायर फैमिली सेज अब तुम्हारा 10th है, अब तुम्हारा 10th है, अब तुम्हारा 10th है, लाइक दैट। एंड इट इज वेरी थ्रेटनिंग इन उन बच्चे के मन में भी, 14-15 साल के बच्चे के मन में इट बिकम्स लाइक अ वेरी बिग माइलस्टोन। ये तो कैसे भी पार करना है, आज तक तुमने जो किया किया, इसको तुम बस पार कर लो, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। इस घर में या आप कहीं भी जाओ रिलेटिव में, हर जगह वही माहौल होता है कि अरे इस साल तो तुम्हारा 10th है, इस साल तो तुम्हारा 10th है, लाइक दैट। द ओनली प्लेस द स्टूडेंट फाइंड सम रेफ्यूज इज जब वो टीचर के पास जाता है। तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स भी ऐसे बिहेव करते हैं कि लाइक तुम्हारा कुछ होगा नहीं, ऑल दैट, बिकॉज 10th इज अ वेरी हुँ, दिस थिंग। एंड हुँ, हाउ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट होता है हुँ, किसी का कुछ कुछ एक्सपीरियंस होता है एज अ प्रोफेशनल फैकल्टी। आप तो मैम बैच पे बैच हर साल 10th और 12th को आप देखते ही होंगे। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ योर पर्सपेक्टिव और माइंडसेट, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल, ऐसा कुछ आपको किसी ने बताया और यू क्रिएटेड योर मेथोडोलॉजी कि कैसे हम बच्चे के एंजाइटी को या स्ट्रेस को, ये सबको हैंडल करेंगे? बिकॉज पढ़ाना भी है, पढ़ाई तो रियलिटी है, नंबर आना भी रियलिटी है क्योंकि वो है, बट वो जो एंजाइटी हो जाता है, दैट इज द फर्स्ट टाइम एक स्ट्रेस का जो अनुभव होता है। स्कूल लेवल में तो बच्चे को 10th के एंट्री में और 12th के रिजल्ट के अराउंड ही, मतलब उसी टाइम पे ही होता है। तो द ओनली पर्सन और गो टू पर्सन इज द फैकल्टी, यस। विच दे इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस इन दैट टाइम। और एक डर भी रहता है, पेरेंट्स सीधा टीचर को पूछते हैं कि कैसा कर रहा है मेरा बच्चा, या ऑल दैट पेरेंट टीचर्स मीटिंग। आई डोंट नो, आज के डेट में तो बहुत ज्यादा पीटीएम भी होता है और बहुत मैंने ब्रिज बना हुआ है कि टीचर्स के साथ पेरेंट का हो। कुछ साल पहले ऐसा था कि बच्चों को, मतलब इट वाज लाइक अगेंस्ट, लाइक टीचर इज टू ब्लेम, पेरेंट्स इज टू ब्लेम टीचर फॉर ऑल द थिंग, और बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट भी। दिस व्हाट हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, हमने कई सारे इंसिडेंट्स देखे। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर प्रोफेशनल जर्नी about this part, or what else you would like to say ki how did you prepare for your professional journey and professional development? Yeah. See, every year new batch is coming, and every child is unique. We have to understand that, and unique in different ways. They are coming from different backgrounds, so we have to understand each and every child and needs of each and every child. अगर हम सभी को एक जैसा ही समझने लगेंगे तो क्या होता है, ये बच्चे जो हैं वो थोड़ा, मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लगता है कि टीचर बहुत बाइस्ड है भाई। जो बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, जो वो, तो उसको तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा है, और जो अलग तरीके से ये है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या है, अपने नीड्स, जो स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, लर्न टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ या जो है, बच्चे की नीड को देखते हुए करना है कि सभी बच्चों की कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ कितनी हैं, एबिलिटी क्या है। तो वो सिर्फ टीचर पे तो ही डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमने जिस तरह का बैकग्राउंड देखा कि चलो हमारे मदर फादर एजुकेटेड हैं, या तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो कई बार अगर बच्चा मायूस हो रहा है कि भाई, एक बच्चे को जब हमने टेस्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, एक बच्चे को बहुत अच्छा मार्क्स आया, वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एक बच्चे को कम आता है, तो कभी कभी हमें ये भी बोलना पड़ता है कि भाई हाँ, देर आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ, बट कोशिश करते रहो, कोशिश में ये मत लगाओ, आप अपना प्रयास जारी रखो। मार्क्स नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं है, आप इसमें मायूस मत हो जाओ कि हम उसको जो फैसिलिटी मिल रही है या उसको जो सिचुएशंस में वो पढ़ रहा है, वो सिचुएशन अगर मेरे पास नहीं है, तो आप ये मत हो। और दूसरा चीज़ है, कई बार मतलब ये आता है, बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता है। टीचर हैज़ टू कीप चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। टीचिंग स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करते रहेंगे। इट्स नॉट अबाउट सिंपली टीचिंग, है ना, कि इट्स अबाउट हाउ यू आर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द स्टूडेंट।
तो कभी उसको क्लास के बाहर पढ़ा दो, कभी उसको लैब में ले जाके पढ़ा दो, कभी उसको तरीके मतलब बदलते रहो। इन माय 30 इयर्स ऑफ सर्विस मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं। आई रेफर द बुक, आई रेफर सम व्हाटएवर रीडिंग आई डू, आई कोट एग्जांपल्स, आई टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डे टू डे लाइफ वाइल टीचिंग साइंस। तो एक नोट्स बना लेते हैं तो हम कैसे हो जाता है, एक हमारा वो वही नोट्स ले लिए हमने, और एक लिमिटेड सा स्कोप रहता है कि हम उसी नोट्स को हम पढ़ा दें बच्चे को। तो वो डे टू डे लाइफ से जब हम रिलेट करते हैं तो बच्चे को समझ में आता है साइंस पढ़ने का मतलब क्या है। तो साइंस पढ़ने से क्या होगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज होगी, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा, तुम्हारे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। एंड सिंस आई एम टीचिंग 11th एंड 12th, तो एक फ्रेंडली एटीट्यूड थोड़ा सा रखना पड़ता है बच्चों के साथ। मैंने देखा कि अगर हम एरोगेंट होंगे तो हमसे ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है बच्चा। तो इसलिए एक फ्रेंडली एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है उनके, तभी वो ओपन अप होते हैं। वैसे इस प्रेजेंट सिनेरियो में, और शायद ये पहले से ही चला आ रहा है, मैं देखती हूँ हर क्लास में 10 से 15, 10 बच्चे से ज़्यादा नहीं होता है जो बहुत सीरियसली टीचर की बात सुनता है। अगर वो 40 का क्लास है, 10 से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं होता है ना? उसमें से 30 बच्चे आपको ऐसे ही मिलेंगे जो अपनी तरीके से ही करेंगे, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। बट कभी ना कभी उसको रियलाइज़ होता है बार-बार बोलने से। सो टीचर हैज़ टू डू द वर्क कि बार-बार बोलते रहना है। कभी-कभी हमें भी ऐसा लगता है कि अरे 10 ही बच्चे सुन रहे हैं, जाने दो। हम्म। तो मुझे कभी लगता है कि अरे जाने दो, 1-2 ने भी सुन लिया और तो उसकी लाइफ में चेंजेस आएँगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा और बड़ा ब्रॉड माइंडसेट हो गया आपका, जैसे मतलब हाँ, जैसे-जैसे ये तो मैच्योरिटी बढ़ती है बच्चों की। हाँ, मैं यही चीज पर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने 30 इयर्स मैम आपने पढ़ा, आप एक ट्रेंड भी देखते होंगे बच्चों के माइंडसेट में, द काइंड ऑफ एडोलेसेंस चेंज, एज होता है वो टाइम, और अलग अलग तरीके के एग्जिबिट करते हैं माइंडसेट या बिहेवियरल चेंजेस, एंड यू आर द फर्स्ट ब्लॉक जो यू नो जहाँ वो प्रदर्शन करते हैं। गुड बैड अगली इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज योर हाँ, when if मैं somebody एक wants स्ट्रैटेजी जो मैं अपनाती हूँ, अगर बच्चा मतलब आई कीप क्वाइट, आई कीप ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी चाइल्ड। मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ उसको, कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ना बुरा बोलती हूँ, ना अच्छा बोलती हूँ। आई कीप ऑब्जर्विंग। हाँ, इफ़ आई सी समथिंग गुड इन चाइल्ड, चाहे वो कोई भी चाइल्ड हो, तो उसको मैं अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ। तो वो मैंने देखा वो अप्रिशिएशन से जो है वो मोटिवेट होता है, वो अच्छा करने लगता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे डिफरेंट बैचेस में आए जिनको मैंने देखा कि अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो वो इम्प्रूव नहीं हुए, लेकिन अगर मैंने उनको छोटी छोटी चीज़ों पर कुछ रिवार्ड्स अवार्ड्स ऐसे अप्रिशिएशंस दिए तो वो उनमें इम्प्रूवमेंट्स आए, और अच्छे रिजल्ट लेकर वो पास भी हुए, ये तो अच्छे मैं जगह एग्री करूंगा। पर। जब घर वाले अप्रिशिएट करें कभी इतना मन पे नहीं लगता, बट जब अगर आपकी टीचर ने कर दिया, वो जिंदगी भर याद रहता है, चाहे वो आप कितने भी बड़े हो जाओ, कुछ भी बन जाओ आपके। ये एक बच्चे के लिए भी एज अ स्टूडेंट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस। नहीं, और कैसा होता है ना, 10th में बच्चा, 10th में आते-आते बच्चा थोड़ा समझने लगता है और वो अपनी सिचुएशंस को शेयर नहीं करता है। स्पेशली गर्ल्स विल डू विद द फीमेल टीचर समटाइम्स, दे आर वेरी क्लोज, दे गेट कनेक्टेड, but boys they don't come to female teachers. So they don't want to share their family problems, they do not want to share, वो अपने ही अंदर। और मतलब मैंने मैंने किसी लाइक गर्ल्स आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स। अभी लास्ट ईयर ही मेरे 10th क्लास में, मीन्स देर वर a family, there was a family, means three siblings were studying in our school, two daughters and one son. तो सन वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, डॉटर वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, और एक 12th पास हो गई थी, मैंने ही उसको पढ़ाया है। तो डॉटर वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, बट सन वॉज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मतलब मम्मी आई, तो मम्मी को बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, तो मैंने कहा कि ठीक है, कि एप्लीकेशन लिख दो। तो फिर वो बोली, मुझे लिखना नहीं आता है मैम, आप लिख दीजिए।
मैंने कहा ठीक है मैं लिख देती हूँ। फिर मैंने उस बच्चे को बुलाया जो 12th स्टैंडर्ड में लड़की पढ़ रही थी। बेटा मैंने कहा एप्लीकेशन लिखो और मम्मी साइन कर देगी। एंड देन फिर वो 10th में जो बच्चा पढ़ता था वो बहुत डाइवर्टेड था, स्टडीज़ में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने जब उसकी मम्मी से बात की तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे वो बताया। तो मैंने कहा फिर वो लड़की ने भी मुझे थोड़े-थोड़े, बिकॉज़ आई वाज़ अ क्लास टीचर, तो मैंने कहा बेटा ऐसे सब बातें शेयर करनी है कम से कम एज़ अ क्लास टीचर, उससे आके आप शेयर कर सकते हो। एंड यू आर सो गुड इन स्टडीज़, व्हाई योर ब्रदर इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट? तो बोले मैडम ऐसे ही ये सब कारण फैमिली घर में है तो नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर वो पीटीएम में जब भी नेक्स्ट पीटीएम में अब 10th वाले बच्चे को भी मिलने आ रही है फिर मम्मी, 12th वाले की भी आ रही है, तो हर समय वो मम्मी मुझसे ज़रूर मिलने आती थी और उस लड़के को भी लेकर आती थी साथ में, कि मैम इसको समझाइए, मैम इसको समझाइए, ये नहीं तो मैम आपकी बात सुनता है। तो मैंने कहा चलिए, मीन्स इफ वी नो द प्रॉब्लम्स लाइक, तो मैंने देखा है कि बच्चे बॉयज़ जो हैं वो बोलते नहीं हैं। सो दे ट्राई टू हम्म सॉल्व कि पेरेंट्स और ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे, हम्म हमारी चीज़ें हम अगर किसी और से शेयर करेंगे तो वो कहीं उन आई थिंक अगर मैं नैरेटिव समझूं तो आपका प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी डायनेमिक, ईच डे एंड एवरी डे समथिंग इज हैपनिंग, मतलब उल्टा भी हो सकता है और आपको मैनेज करना पड़ता है हुँ। द वे मैनी यू अ काइंड टाइम्स ऑफ अप्रोच। मैनी अ टाइम्स थिंग्स कम, बच्चे बोल देते हैं, बच्चे बच्चे हैं, लाइक हमें इग्नोर करके भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना? तो बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। तो बट आपका एटीट्यूड और अप्रोच जो मैं समझ पाया कि लाइक इट्स क्वाइट इन अ वेरी स्ट्रीमलाइन, कि ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे हो जाना, एंड यू नो बिकॉज एवरी डे इज गोइंग टू बी दैट टाइमिंग जो मुझे बिकॉज़ अभी अभी आपने से बताया। वी हैव कम आउट ऑफ स्ट्रगल अभिलाष। सो Yeah. हम मैंने सब कुछ देखा हुआ है ना? मैंने अच्छी Immediately फैमिलीज़ भी देखे empathize हो हुए जाता हैं, हाँ, अच्छे फैमिलीज़ भी देखे हुए हैं एंड गाँव की भी लाइफ़ देखी हुई है, सभी तरह के सिचुएशंस देखे हुए हैं। तो अपनी फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके साथ बहुत सारे मिसहैपनिंग्स हो गए हैं, तो हाउ दे आर एडजस्टिंग, तो है। ये या सब चीज़ें देखकर हाँ, हमें भी ऐसे मतलब ये सब एक्सपीरियंस मिल जाता है उससे कि बच्चा जो आ रहा है स्कूल में वो भी तो अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहा है ना, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहा है। तो इट एज़ अ टीचर इट इज़ आवर रोल कि हम उसको समझें, उसको मोटिवेट करें, उसको इंस्पायर करें, वो कैसे तो भी कर ले। तो मैम वी एक्चुअली अंडरस्टूड आपने कैसे अपना कॉलेज कंप्लीट किया, अभी फिर देन यू गॉट अ पोजीशन ऑफ जॉब इन नासिक, and you then joined as a professional, as a you started your career as a professional teacher. So ma'am, how was it? Was it for directly class 9th and 10th 11th 12th, और जैसा आपने प्राइमरी में ज्वाइन किया था, can you just highlight little bit more on your professional part of as a faculty or school teacher, कैसे start हो? I basically, as a primary teacher, I was working on contract basis for a year. Then, when I was in KV Ojar, KV Nasik, Ojar is in Nasik. So, there were there was no teacher in 11th standard for chemistry. Um, some contractual teacher was there. She left in between, so I got the opportunity to teach 11th class that time. So hardly for 2 months only, and that helped me in my interview for this regular post in KB. सो 11th क्लास जब मुझे दिया गया तो एक हमारे पीजीटी मैथ्स थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैम आप अभी अभी एमएससी करके आए हो, आप तो फ्रेश हो, आप कहाँ पीआरटी में यहाँ आ गए हो, तो हमारे तो यहाँ पीजीटी की वैकेंसी है, आप आपके लिए मैं बात करूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर कर लीजिए, पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। पर मैंने इतने बड़े बच्चों को कभी पढ़ाया तो है नहीं, छोटे बच्चों को तो पढ़ाया, ठीक है। तो बोले इट इज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट टाइम मैडम, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो 2 महीने का जो एक्सपीरियंस था दैट हेल्प्ड मी अ लॉट एंड जब मैं अपने केवी के इंटरव्यू के लिए गई, उसके बाद ही 2 महीने 2-3 महीने के बाद ही इंटरव्यू था हमारा केवी में। एंड मैंने पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी तीनों के लिए इंटरव्यू दिए और जब रिज़ल्ट आया
तो मुझे नहीं पता था, मैंने तो सारे इंटरव्यूज़ दे दिए और जब रिज़ल्ट आया सबसे पहले पीआरटी आया, पीआरटी में नहीं हुआ भई। अब घर वाले तो परेशान कि भैया पीआरटी में नहीं आया तो टीजीटी, और टीजीटी कहाँ आएगा? तो फिर टीजीटी जब आया रिज़ल्ट, मतलब उसी सीक्वेंस में आया था, पहले पीआरटी फिर टीजीटी और लास्ट में पीजीटी। अब टीजीटी आया उसमें भी नहीं हुआ। अब तो होप्स ही चले गए भई, अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं, जाने दो, कॉन्ट्रैक्चुअली करते रहो, तैयारी करते रहो। तो और वो वाला टाइम मतलब जब ऐसे लगता है ना कि 24-25 इयर्स एज हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि भई पेरेंट्स पे हम क्यों डिपेंडेंट हैं। तो मतलब बहुत अंदर से ही ऐसे बहुत ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ, उनके लिए इतना उन्होंने पढ़ा लिखा दिया है हमको, और हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो गया और कहीं भाई नौकरी नहीं मिल रही है। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सा लगता था। फिर जब पीजीटी का रिजल्ट आया, नहीं हाँ, पीजीटी का रिजल्ट आया तो शादी हो चुकी थी। तो 2 महीने के बाद अच्छा, एक साथ पीजीटी का रिजल्ट, हाँ। इंटरव्यू एक साथ हुआ, लेकिन इंटरव्यू, रिजल्ट सब हाँ, अलग अलग टाइम। अक्टूबर में इंटरव्यू और नवंबर में शादी। तो हाँ, उसी तो साल। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर, टीजीटी पीआरटी इज़ मतलब प्राइमरी ट्रेंड। टीचर, टीजी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, 6 टू 10 तक पढ़ाते हैं और पीजीटी 11-12 को पढ़ाते हैं। अब भई टीजीटी का रिज़ल्ट आ गया तब तक उसके बाद शादी हो गई। अब ये जनवरी में, कहीं नवंबर में शादी हुई, जनवरी में अपॉइंटमेंट लेकर मम्मी आती है नासिक। नासिक में मेरे हस्बैंड करेंसी नोट प्रेस में थे। तो 2 महीने में भैया, अरे एमएससी करके घर में बैठे हो ये भी एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन सा था कि अब हस्बैंड भी बोले कि अरे फ्रस्ट्रेट मत हो, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज में जाओ, पता करो, कहीं एप्लीकेशन डाल दो। रिजल्ट तो गवर्नमेंट जॉब्स तो ऐसे ही होते हैं, टाइम लगता है उसको, फ्रस्ट्रेट मत हो। मैंने कहा नहीं। फिर जब मम्मी आई लेकर जॉइनिंग लेटर वगैरह, तो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा अरे भैया बहुत अच्छा हो गया, ये नौकरी मिल गई, नहीं तो भैया पूरा घर में ही यहाँ पे रुकना पड़ता। अब एड्रेस आपका सब आगरा का था, आगरा, हाँ। मतलब इंटर। एड्रेस अब आगरा का था। तो अब वो प्रॉब्लम कि भई उस नासिक जमाने में। में, हाँ, नासिक में हस्बैंड ने कोशिश की कि भई नासिक में कहीं वैकेंसी वैकेंसी है तो नासिक केवी में ही मिल जाए, बट नहीं। फिर आई वेंट टू दिल्ली हेडक्वार्टर विद मम्मी। मम्मी आगरा ले गई मुझे, बोले वहाँ से ही जॉइन करवा लो। हस्बैंड ने बोला कि अब तुम्हें हेडक्वार्टर तो रिपोर्ट करना ही है। फिर मेरे वाइस प्रिंसिपल थे, जो वो आगरा में ही थे, जो मेरे टाइम में वाइस प्रिंसिपल थे केवी में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हमारे जो प्रिंसिपल थे स्कूल में, वो उस समय हेडक्वार्टर्स में असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू गो एंड रिक्वेस्ट हिम, कि वो ही आजकल ट्रांसफर्स देख रहे हैं, यू रिक्वेस्ट हिम कि यू गेट नासिक। तो अब घर में पहले तो यहाँ से भेजने को ही नहीं तैयार थे कि इतनी दूर जाना। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, हस्बैंड वाज इन गवर्नमेंट जॉब, तो ही वाज रियली सपोर्टिव। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं तुम जाओ, बाकी हम मैं देख लूँगा। तो मैं चली गई मम्मी के साथ। फिर वहाँ गए तो वहाँ भी कुछ बात नहीं बनी। 15 दिन एक्सटेंशन लेने सजेस्ट किया मुझे। 15 दिन एक्सटेंशन लिया मैंने। फिर 15 दिन के बाद फिर से गई हेडक्वार्टर्स, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं आई और मुझे सुल्तानपुर, केवी सुल्तानपुर लखनऊ रीजन में था, वहाँ का जॉइनिंग मिला। अब उस समय मतलब सुल्तानपुर एंड रानीगंज उत्तराखंड में है। तो वहाँ 2 ऑप्शंस मुझे दिए गए। तो लकीली मतलब बोलते हैं ना, व्हेन यू आर ट्रू एट हार्ट, तो सब वैसे मदद करने जैसे भगवान ही आ गए। तो सुल्तानपुर जब मुझे चॉइस मिली तो बहुत मैं खुश हो गई, क्योंकि हम जिस मकान में किराए पे रहते थे आगरा में, उनके जो बेटे थे वो डॉक्टर थे वहाँ सुल्तानपुर में। तो एक कैसे पहचान होती है। तो पापा जी बोले बेटा सुल्तानपुर ऑप्ट कर लो, रानीगंज वानीगंज तो कोई नहीं, सुल्तानपुर ले लो। सुल्तानपुर ले लिया। गए सब, अपना मेडिकल वेडिकल भी आसानी से हो गया सब वहाँ पे। सब कोट वोट, छोटी सी जगह है सुल्तानपुर, अच्छा सब करवा दिया, हो गया, जॉइन कर लिया। एंड ये एक मतलब आई गॉट वेरी गुड प्रिंसिपल्स इन केंद्रीय विद्यालय व्हेन आई जॉइंड। जो केंद्रीय विद्यालय गीत है जिन्होंने लिखा है,
सूर्य प्रताप सिंह चकोर। अच्छा, हाँ, भारत का अच्छा, अच्छा। स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय था। स्वर्णिम गौरव। तो वो मेरे करेक्ट। प्रिंसिपल थे उस समय। अरे क्या हाँ, बात है, मुझे तो पता तो नहीं स्वर्णिम। जब मैं एंटर हुई तो बड़ा अच्छा एम्बियंस, मतलब वो जो विद्यालय गीत है वो वहाँ पे लिखा हुआ था और नीचे सूर्य प्रताप सिंह चकोर, चकोर उनका जो पेन हाँ, नेम है, पेट राइटिंग नेम नेम। है वो दिया हुआ था। तो मैंने कहा कि ये तो सूर्य प्रताप सिंह कौन है? ये तो अपने प्रिंसिपल हैं, तो इनका नाम क्यों लिखा हुआ है यहाँ हाँ। पे? तो बोले इन्होंने ही तो लिखा है ये गीत। तो ही वाज़ हिंदी अरे वाह। टीजीटी एट दैट टाइम। तो काफ़ी सीनियर थे, काफ़ी, एंड आई वाज़ वेरी यंग। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से भी। एंड मैम ये टाइम कब कब होगा? 1990 कब कब होगा ये? 1994, अच्छा। February 1994, 21st February 1994 I joined. Then म्यूचुअल ट्रांसफ़र मैंने औरंगाबाद ले लिया बिकॉज़ माय हस्बैंड वाज़ इन अच्छा। नासिक, तो एटलीस्ट मुंबई रीजन में आ गई मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर। हाँ। देन वहाँ पे भी द्विवेदी सर एक हुआ करते थे, केमिस्ट्री के ही थे द्विवेदी सर औरंगाबाद में। सो फ्रॉम सुल्तानपुर टू औरंगाबाद, औरंगाबाद आई स्टेड 4.5 years, and after exactly 6 years I went back to my place. 21st February to 1994 I joined, and 21st February 2000 I went back to my home Nasik. So six अरे years, वाह। हाँ, 6 years जो है अ, भारत। अज्ञातवास रहा। और अज्ञातवास। और उसके बाद 16 years, around 16 years I was in Nasik, so that my daughter could complete her uh, schooling from KG to 12th standard. After that, she was shifted for pursuing law in Pune. I took a request transfer to Pune for helping her, guiding her, and this is how I came to KV Army area Pune, and still I'm working in KV Army area Pune, and I've worked under very good senior principals, and as a student as well as a teacher, I got a lot of opportunity to learn from each and every. Since Nasik was a small city, uh, Pune is a big, little bigger one. So Pune has different challenges. Nasik had different challenges. So lot of exposure is there. Mm. So Ma'am, there from are, the I would like to also say, ma'am, that like I've heard about you winning best teacher awards at many forums at different time. But how does that award inspire you in your professional journey? And if I can know a little bit more about those award ceremonies and how things have been, how did you find it? Uh, क्या actually, मोटिवेशनल होता है? ऑब्वियसली यू मेंशन्ड एम्पैथी yes. एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। Actually, तो खुद के लिए भी एक रिकॉग्निशन। when I was posted to Nasik, I was at very ease because I had a lot of resources. My husband was a supporting hand for me. In Aurangabad, I had a very struggleful time, but coming to our own place, it is little convenient for a female, because a helping hand is there with you. So that was the time when I uh, could dedicate myself more for the students and the school. I did lot of work. The whole lab, chemistry lab, was established in my presence only. Means that was the first batch of 11th class when I went there. So nothing was there in the lab. So I was the first one to um, put the racks, all the reagents we purchased, and we established the whole lab. So uh, that was a wonderful experience for me. How when you got award, पहला award आपका एज अ। I was in KV ISP Nasik, ISP Nasik Road. So I was made a CCA in charge. So I was very creative. I had lot of ideas with me. So the principal had come from South, KV Sambra से वो आए थे, and I don't know what he saw in me, my communicative skills or what, I don't know. So he made me a CCA in charge. Then when I सीसीए इज co-curricular सीसीए इज activities.
So co-curricular Absolutely. activities are very prominent in Kendriya Vidyalayas. So I don't Yeah. feel there is any school other than Kendriya Vidyalaya where so many I'm focused co-curricular with it. activities True, man. are happening every week. So lot of Every week. activities, KV gives lot of opportunities in every field, may it be scout guide, may it be sports or academics, science exhibitions are there. So many other social science exhibitions are there nowadays. एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं केवी में. तो इसके चलते मुझे बहुत सारा, मुझे एक वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी. और एज अ को करिकुलर activities in charge, I got to learn many things. So in different fields, I was I got the opportunity to work in different fields. So maybe, and then my principal called me. One of our maths teacher, he had got the award, national award in those days. I had hardly completed 8 years of my service at that time. So I said, sir, what is the condition for getting this national award? So my principal told me. I was asking in front of my principal उनको जब मिला तो मैंने बोला, सर क्या कंडीशन क्या है ये नेशनल अवार्ड मिलने के लिए? तो मेरे प्रिंसिपल हंस के बोले कि अगली बार तुमको दिलवाएंगे, पर 15 साल सर्विस होनी चाहिए उसके लिए. तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं 15 साल के बाद लूंगी. तो तब उस समय रीजनल अवार्ड नहीं मिला करता था. तो ये दैट वाज द नेशनल अवार्ड. फिर जब मेरी 15 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई तो मैंने कहा ठीक है, फॉर्म भरना होता है, भर देते हैं. सो आई फिल्ड द फॉर्म. अब जैसे जैसे सही चीज़ें होती हैं वो भर दिया, और बहुत सारा मेरा फॉर्म ब्लैंक था. तो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और बोला कि ये सब ब्लैंक क्यों है, इसमें तो अवार्ड नहीं मिलेगा तुमको. व्हाट ऑल वर्क यू हैव डन, फिल इट. और उन्होंने बड़ा अच्छा साइटेशन भी लिखा मेरे लिए. मतलब दैट साइटेशन हेल्प मी आउट टू गेट दैट अवार्ड. नहीं मैम, अवार्ड तो आपको हर बच्चा देगा, आपके स्टूडेंट तो आपको, आई मीन आई कैन से दिस, बट यस, एक रिकग्निशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन डज मेक अ अभी फेसबुक वगैरह पे हूँ, आई एम ऑन फेसबुक एंड ऑल. तो जब बहुत सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ बच्चों की, बड़े अच्छा लगता है. सो दिस इज द रिवार्ड फॉर मी एज अ टीचर. दिस इज द बिगेस्ट रिवार्ड. wow. Ma'am, abhi now coming to, I mean, the last phase of our conversation. Ma'am, you have had an amazing 30 years. जिसके, I mean, there's a lot of stories which can emerge, and our time is very limited to go by that. But what I understand कि द 30 years जो आपने दिए आपके करियर में और आज का जो जमाना है, where there is a whole lot of shift in mindset, approach to teaching, and understanding the relevance of, इनफैक्ट मैंने तो ये देखना शुरू कर दिया कि ह्यूमन एलिमेंट को लोग कम करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद स्टडीज. पढ़ाई यूट्यूब या वीडियोस में कर रहे हैं कि एप्स वगैरह यूज करके कर रहे हैं. सम और अदर वे it is going, technology is trying to kind of uh, cut back Replacing the the teachers. They cut want to back the replace the human teachers. element. But whereas I understand from you how relevant, how important is that presence and is that person. Actually, replacement of teachers will not work out. Hybrid नहीं, will work out. मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा. मैं Yes. कहना चाहता हूँ कि इस माइंडसेट के साथ, हाउ डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड ऑफ विजडम वुड यू गिव somebody who wants to join as a प्रोफेशनल टीचर इन द स्कूल्स, एंड वी इन इंडिया हम जानते हैं कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम नीड सच काइंड ऑफ टीचर्स, जिससे कि एक्चुअली हम फ्यूचर तो आप ही बनाते हैं मैडम, आप अग्री करें या ना करें. सम और अदर वे विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स वो बच्चा ना अपने आप को मानता है वो सफल हुआ है, ना वो मानता है कि वो कुछ कर सकता है अक्रॉस दी कंट्री, एंड कल्चरली ऑल्सो इट इज लाइक दैट. तो आपकी मम्मी भी अगर टीचर हो तब तक वो अप्रिशिएट नहीं करती एज अ रोल ऑफ टीचर, यू डोंट फील दैट कि you are doing something right or. So what do you say that so that I can create that? Actually, teaching job is very demanding nowadays, and we need good teachers because with the upcoming objectives of the NEP, New Education National Education Policy 2020, by 2030, we have to fulfill many of the objectives. So one of the demand of um,
education system is like 21st century skills are needed for a teacher, because unless the teacher doesn't have those skills, the teacher will not be able to understand this child. Because in a class of 40 or 30, teacher has to be very efficient and effective to understand. So we need lot of good teachers. So the demand of teachers will be increasing, and in NEP they have given also many objectives are there. To fulfill them, teachers training will be held, and then inclusive education, equity, so many things are there which will be coming. And with the advancement of technology, everywhere, like globally, the student, anywhere, the student has to learn. So the teacher has to be updated with the latest technologies. And there are so many platforms coming up. YouTube hai, so many learning platforms are there. Khan Academy hai, physics wala hai. So teachers have to be updated with that technology also. So मैं एक अप्रिशिएटिव बात कहना चाहूंगा मैम, जब कोविड हुआ ना मैम, hmm, I think the biggest contribution professions which teachers became actually a software or a technologist person. उन्होंने अपने जूम करके हैंडल करके कोविड के दौरान, उससे ज्यादा मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे वाइड में कि मतलब द वे द टीचर्स मैनेज द एंटायर एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड, जो मेहनत की है। मैं भी एक किसी से जुड़ा था कि उन्होंने हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ की, उन्होंने हमने कम से कम 25,000 स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग करवाई थी, कटक डिस्ट्रिक्ट में, hmm, उड़ीसा में, कि कैसे hmm, घर बैठ के मोबाइल डिवाइस के साथ कर पाएं, और hmm, उन टीचर्स को hmm, ट्रेनिंग करना कि कैसे आप आएं hmm, और आपका क्लासरूम में, खाली खाली क्लासरूम में वीडियो अपने मोबाइल के थ्रू, कैमरा के थ्रू करें, एंगेज करें। तो मैंने ये देखा कि अगर टीचर में वो विलिंगनेस नहीं होता कि मुझे बच्चों के लिए पढ़ाना है, वो बैरियर ऑफ टेक्नोलॉजी को क्रॉस ही नहीं करता। और सीनियर सीनियर टीचर, दे वर हैंडलिंग जूम कॉल्स एंड मीट सो ब्यूटीफुली। कोई ऐसा लगता था कि जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस में आप बैठे हो और मीटिंग चल रही है, एंड वाइल एक बोर्ड रूम मीटिंग में 20 से 25 लोग से ज्यादा होते नहीं है, क्लास ऑफ 60 100 चुपचाप सुन रहा है। एंड आई मीन इट वाज समथिंग, मैंने वो फेस देखा है एज अ, मैंने एज एक अ और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, मतलब फॉर हायर स्टडीज दिस ऑनलाइन टीचिंग इज ओके, but up to 10th standard I don't feel the children are so serious, because nobody is there to monitor them at home sometimes, because nowadays with working parents, when both mother and father are working, nobody is there to monitor the students. So and everything is open on um, internet. इंटरनेट। Yes, so माय इंटेंशन ऑफ सेइंग दिस वाज कि टीचर ने ओवरकम किया, अपस्किल किया अपने आप को उस सुविधा के पल में, दैट काइंड ऑफ अप्रिशिएशन फॉर द जॉब, फॉर द प्रोफेशन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। we also received lot of appreciations from our organization, because teachers have done a good job by teaching students online and all. So वो it भी was मैम a तो घर, new learning actually. It was a new learning for all of us. Even न्यू we लर्निंग। also did not thought. Yeah. कोविड तो घर पे इधर भी चल रहा था ना, टीचर के यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम, मतलब तो थी कि uh, उसका एनवायरनमेंट बना के रखना। सबके घर इतने एक्यूट होते नहीं है कि शांत माहौल, ऑन अ yes. वेरी रियल टू रियल बेसिस आई एम सेइंग, एंड आई हैव सीन पीपल गॉन दैट माइल, एक्स्ट्रा माइल फॉर बच्चों को पढ़ाने के लिए ड्यूरिंग, आई थिंक टीचर्स डे में तो आप जितना थैंक यू करो टीचर्स को इन सब चीजों के लिए, कम है मैडम, उनको तो और मतलब आई फेल्ट इंडिया हैज ए होल लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, और ऐसे टाइम। India is really developing very fast. Yes, and all because of teachers actually. मैं first career counselor, first person who tells you what is the outside world, what is the scope of your education. Parents जितना नहीं होते हैं, teacher ही हैं, because parents, I as you mentioned, सब आजकल double occupation, और giving time to the child is very difficult. Child बहुत जगह से knowledge लेता है, but the engagement happens with teachers, and I feel very happy, ma'am. I would also like to wish you again and again happy Teachers Day. And definitely, it's not about a day. आपका जो impact है सबके करियर में, सबके लाइफ में, ऐसा it's not just about career. As a human being, as a person, we get inspired by our teachers. हम उनको day to day देखते हैं ना,
दिस थिंग इन अ डेली बेसिस. और हर दिन सेम तो होता नहीं है, किस दिन कुछ कुछ होता है. बट यस, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर, जैसा आपने कहा, अगर वो ब्रिज बना रहे ओपन अप करके बोलने का, तो वो एक इंडिविजुअल बच्चे को या स्टूडेंट को बड़ा कॉन्फिडेंस देता है. इट इज रियली अ गोल्डन अप्रिशिएशन. कोई अवार्ड उसको नहीं बीट कर सकता जितना एक टीचर का शाबाश तो होता है. So, with this, I would like you to give a concluding line to our discussion and creating more awareness about the profession once more. If I request if you can give a concluding line, concluding statement for today's. Um, okay. Uh, my advice to the young generation is, if you want to uh, come into the job as a teacher, you have to be very passionate. Passion is a key. Uh, then you have to be very empathetic. Empathy means you have to understand each and every child as keeping yourself into that situation. Then the third thing is, you have to be a learner throughout. You should not get irritated with small things or small work which is coming up to you. So keep learning throughout your life and enjoy your work. So this is the key to the success. Be patient, don't give up. Whatever work is assigned to you, whatever, do it fully with full enjoyment, and leave rest on God. Keep doing, learning. Thank you so much for your word of wisdom and thank you for your time. Uh, आपने पहले कह ही दिया कि आप मेरी टीचर हैं, तो मैं तो ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा हूँ that I could spend some time with you today. Even even I'm really very proud that my students are taking my interview and they are well well established at different places. Really, mm, So with this, ma'am, from all the student of yours, ma'am, कोई भी time के हो, I am wishing you happy Teachers Day. Many of you thank would be commenting on the video also कि जो ये देखेंगे आपके student इसको. So happy Teachers Day, ma'am. Thank you again. thank you so much. Thank you so much, Abhilash. So friends, so आज हमने देखा एक career line of faculty and as a teacher in school education system. As मैडम ने बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 21st century skills and what kind of attitude and mindset one needs to be in this field as a professional. Teachers are the first point of contact when it comes to career, when it comes to knowing knowledge about anything which is happening dynamic in the world. इसलिए खुद को भी बड़ा ब्रॉड माइंडेड और ओपन रहना पड़ता है, लर्निंग थ्रू आउट एंड एवरी टाइम एंड वेरी वेरी पैशनेट. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि स्कूल के करिकुलम में ना प्रोजेक्ट्स वर्क वगैरह होते थे एंड हैड इट नॉट बीन आवर टीचर्स, हम यूनिक आइडियाज को वहाँ ट्राई ही नहीं कर सकते थे. टीचर्स हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट दैट दे कम विथ यू टू, आप नेशनल्स प्रेजेंट करने एक छोटे से जगह से बड़े शहर में जाओ, दे एक बच्चे के साथ भी दे जाते हैं टू रिप्रेजेंट योर आइडिया टू द बिगर प्लेटफॉर्म. उस टाइप का कंट्रीब्यूशन, उस टाइप का जो जब आप देखते हैं किस किस जिम्मेदारी के एहसास के साथ. इनफैक्ट वन मोर क्वेश्चन, जब आप स्कूल से पहली बार रिप्रेजेंट करने बाहर जाते हैं, आप टीचर्स की जिम्मेदारी के साथ जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में गए होंगे, चाहे आप सोशल साइंस में गए होंगे, साइंस के कोई एग्जीबिशन कहीं पे भी गए होंगे, और आपके पेरेंट्स वो ट्रस्ट रखते हैं कि आपके टीचर्स आपके साथ होंगे एंड दे विल गो एंड डू दिस लर्निंग एनवायरमेंट. जहाँ भी जा रहे हैं वो अव्वल नंबर होके आएंगे. दैट एक्सपोजर ऑलमोस्ट जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा, दे वुड अंडरस्टैंड दैट इज द फर्स्ट टाइम आप टीचर्स को क्लासरूम के बाहर देखते हो एंड दे आर विथ यू टू गाइड इन योर, आप जहाँ पे भी कंपटीशन करने जाते हो. तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होता है चाइल्ड को कि देखो मैं बाहर आया हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी मैडम आई है या मेरे सर आए हैं जो मुझे मेरे साथ खड़े हैं. एंड तो उस पूरे मैं अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि मेरे साथ एक टीचर गई थी बॉम्बे में केवी नंबर 1 में, और वहाँ और कोई था ही नहीं. अकेली मेरी टीचर मेरे लिए क्लैप और चीयर कर रही थी फॉर द एंटायर इवेंट, और हम जीते भी.
बिकॉज बाकी तो अलग अलग स्कूल से अलग अलग लोग आए थे, बट वो मेरी मैडम का मेरे लिए क्लैप करना, एंड दैट टू शी वाज फ्रॉम माय स्कूल, प्राइमरी टीचर थी मैडम, एंड द काइंड ऑफ एंथुसियाज्म शी शोड, आई फेल्ट लाइक जैसे तो आपने कोई कुछ तो बड़ा काम कर लिया. So like that exposure and that kind of responsibility a teacher has, and your memory with your school teacher or your teacher in college stays forever. With this, I would like to wish all my teachers and all the people who are in this profession of noble profession of teaching a happy Teachers Day. Thank you very much. Kindly subscribe the channel and comment all your thought about this special episode. Thank you. Bye-bye.